وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، مشاہدین و مشاہدات، عزیز بچوں، یہ درس آپ کے لیے جس کا اہتمام کیا گیا ہے قرآن و سنت کی اہمیت کو آپ کے دل میں اتارنے کے لیے اور اسے آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اور روشن کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برادران کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جتن کیا ہے، اس کی تیاری کی ہے اور اس کے لیے کوشش کی ہے، اس کے لیے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کتابی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور آج اس قرآن کے تعلق سے ایک ایسا نقطہ میں بتلاؤں گا آپ کو جسے کبھی کبھار آپ سن چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوا، جستا جستا نازل ہوا، کم سے کم 23 برس میں نازل ہوا، بیک وقت نہیں نازل ہوا۔ یہ توریت کی تختیوں کی طرح سے نہیں نازل ہوا ہے قرآن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بلایا گیا اور پورا قرآن اٹھا کر کے دے دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ جب بھی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا اور اسی کا کچھ حصہ وہ دے کر کے چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ امی تھے۔ امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ۔ کچھ لوگوں نے کہا امی کا معنی ہوتا ہے ام القریٰ کا رہنے والا، کیونکہ مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، تمام گاؤں کی ماں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کیونکہ زمین جب بچھائی گئی تو مکہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اسی وجہ سے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ تو اس ام القریٰ کے رہنے والے کو بھی امی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے امی کہا جاتا تھا۔ لیکن زیادہ راجح بات ہی ہے کہ وہ پوری قوم امی تھی۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں، ہم چیزوں کو لکھتے نہیں، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ 10 10 20 اور اس طرح کا بھی ہوتا ہے، یعنی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ ہم ایسے انگلیوں پر گن کر کے بتا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان پڑھ شخص ہی انگلیوں پر گنتا ہے، اور جس کو لکھنا آئے وہ لکھ کر کے حساب کتاب کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، دیکھ کر چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو پڑھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ذہن دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنیں اور ڈائریکٹ یاد کر لیں۔ تو جبریل امی آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے اور بسا اوقات آپ جبریل امی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے
पूरा कुरान नाजिल हो चुका था, पूरा कुरान महफूज था, लेकिन दो दफ्तियों की शक्ल में जो कुरान हम देखते हैं, यह कैफियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जमाने में कुरान की नहीं थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, पूरा कुरान महफूज था, लेकिन किस तरह महफूज था? कहीं चिथड़ों पर लिखा हुआ है, कहीं खजूर की टहनियों पर लिखा हुआ है, कहीं चरम पे खाल पे लिखा हुआ है। बहरहाल इस तरीके से जगहें गर्च मुख्तलिफ लिखे जाने की, पर पूरा कुरान महफूज था, लिखित तौर पर भी, और हुफ्फाज तो बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं। ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद यमामा की जंग जब छिड़ी मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ, इसने नबूवत का दावा किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूं, और मदीना के मुसलमान अगर मुझे नबी तस्वुर नहीं करेंगे तो मैं मदीना पर चढ़ाई करूंगा। रियाज के इलाका, उयैना, हुरैमला, यमामा, यहां से इसने बहुत बड़ा जत्था इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज इकट्ठा की मदीना पर हमला करने के लिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई में बहुत सारे हुफ्फाज मारे गए। सोचें, तो इस जंगे यमामा के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में गए, कहा अमीरुल मोमिनीन, आप कुरान को दो दफ्तियों के बीच में लिखाने की कोशिश करें, इकट्ठा करें कुरान को, क्योंकि जैसे हुफ्फाज जंगे यमामा में मारे गए हैं, ऐसे हुफ्फाज दीगर जगहों पर जंगों में शहीद होते रहे तो फिर कुरान गैर महफूज रहेगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है वो मैं कैसे करूं? इस्तिखारा किया उन्होंने। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी। बहरहाल अल्लाह ताला ने दिल खोल दिया कि नहीं, कुरान इकट्ठा करो। और जब भी कोई बड़ा मसला पेश आता था तो सहाबा भी इस्तिखारा करते थे। हमें और आपको भी इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा के माने होते हैं खैर को तलब करना। बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से मशवरा गोया कि बंदा तलब करता है। दो मामला आपके सामने आ गए, अब आप फैसला नहीं कर पा रहे, क्या करूं? आपको शादी करनी है, पैगाम दो जगह से आ गया, आप फैसला नहीं कर पा रहे, दोनों घराना एक जैसा है, दोनों की बच्चियां एक जैसी हैं, अब आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये मकाम है इस्तिखारा करने का। इस्तिखारा करने के बाद जिसकी शादी आपके दिल में आती है उसे आप शादी कर लीजिए। जब भी इस तरह का मसला आए, सलफ़े सालिहीन इस्तिखारा किया करते थे। ये मौका आया कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने भी इस्तिखारा किया। दोनों साहिबैन यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब दोनों ने इत्तेफाक कर लिया कि वाकई कुरान को दो दफ्तियों के बीच में लिखा जाना चाहिए, तब गए ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जो सबसे बड़े कातिबानी वही थे। उनसे कहा कि देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप कुरान लिखते थे और आप तगड़े हैं, जवान हैं, ये काम आप कर सकते हैं, लिहाजा एक कमेटी तश्कील करो और उसके जिम्मेदार आप रहेंगे और कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा करो। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही बात कही जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था कि वो काम हम कैसे करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साहिबैन ने जब गुजारिश की तो कहते हैं कि अगर उहुद पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को कहते तो ये हमारे लिए आसान था कि मैं उहुद पहाड़ को दूसरी जगह मुंतकिल कर देता, बनिस्बत इसके कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा किया जाना ये हमारे जिम्मा डाला गया। बहरहाल वो भी इस्तिखारा किए। कहते हैं फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल को भी खोल दिया कि वाकई ये काम होना चाहिए। तो बहरहाल ये काम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ग्रुप के, उस लजना के, उस कमेटी के जिम्मेदार ठहरे और फिर कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा किया गया। 10 आदमी जब आकर बताते कि हाँ ये आयत हमें याद है, ये आयत है, और कम से कम 2 आदमी के पास वो चीज लिखी हुई मौजूद होती, तो उसको दर्ज किया जाता।
इस तरह से तहकीक के साथ कुरान को रखा गया दो दफ्तियों के बीच में। यहाँ एक सवाल है जो मैं आज कहना चाहता हूँ, ध्यान देंगे आप सब, खवातीन भी, मर्द भी और बच्चे बच्चियां भी जो समझ सकते हैं। यह काम जो शरीयत का कुरान और हदीस में नहीं था, जो ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, ना कुरान में कहीं इसका तज़किरा था कि दो दफ्तियों के बीच में कुरान है, फिर सहाबा ने यह काम क्यों किया? यहां हमारा मसला आया और यहां वो चीज आई जो आज मैं बोलना चाहता हूं। क्या बोलना चाहता हूं मैं? शरीयत की मुत्तफक अलैह दलीलें क्या हैं? तो शरीयत की मुत्तफक अलैह दलीलें सबसे पहले कुरान है, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, और उसके बाद इजमा है। ये इजमा आया, ये कुरान में इसका तज़किरा डिटेल के साथ या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काम नहीं हुआ, लेकिन सहाबा इकट्ठा हो गए कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में किया जाए। लिहाजा सहाबा के इस तरीके को जो छोड़ेगा और इस मनहज से जो हटेगा और जो कहेगा सहाबा ने खयानत की है, जो कहेगा कि सहाबा ने गलत काम किया है, वो गलत होगा और उसके मसले को गलत कहा जाएगा। तो दो, एक कुरान, ये शरीयत की दलील हमारे लिए है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, और सहाबा का इजमा या पूरी उम्मत का इजमा किसी दौर में किसी मसले पर रहा हो तो वो भी हमारे लिए और आपके लिए दलील है। ये तीन चीजें हो गई, यानी शरीयत की दलील है। यहाँ कुरान मुकद्दस की एक आयत जिसको शरई दलील हम और आप कह सकते हैं, उसे मैं पेश करता हूं, आप भी अपने हाथ कोट कर लीजिए। ये सूरत है सूरह निसा, उसकी आयत है 115। गुजारिश है तमाम बरादरान जितने भी मुझको सुन रहे हैं, कुरान खोलेंगे बाद में, सूरह निसा आयत नंबर 115, आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां क्या फरमाया है। मैं उसको पढ़ता हूं, उसका मैं तर्जुमा भी करता हूं। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। क्या तर्जुमा इसका जरा देख लीजिए, बहुत वाज़ेह अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़ेह हो जाने के भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करे और तमाम मोमिनों की राह छोड़े। यहाँ सहाबा ने इजमा किया कि कुरान को दो दफ्तियों के बीच में इकट्ठा करना है, सहाबा का इजमा हो गया, ये सहाबा का राह मुतय्यन हुआ गोया की, और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले, हम उसे उधर ही मुतवज्जह कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जह हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है। मोमिनों के रास्ता को जो छोड़ेगा और दूसरे संत जो चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम उधर ही उसको मोड़ देंगे और दोज़ख में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मोमिनों का रास्ता इसने छोड़ दिया है और पहुंचने की बहुत ही बुरी जगह है। कौन? यानी जहन्नम। यह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 115 में कि मोमिनों का रास्ता नहीं छोड़ना है। और मोमिनों का रास्ता का मतलब जिस पर सहाबा का इजमा रहा हो, ताबईन का जिस पर इजमा रहा हो, उलमाए उम्मत का जिस मसले में इजमा हो, जिस पर वो इकट्ठा हो गए हों, उससे किसी बंदे के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो उससे हटे। तो शरीयत की एक तीसरी दलील क्या मिली हमें और आपको? इजमा। अब अगर कोई शख्स हमसे पूछे कि अहादीसे रसूल में कहां मौजूद है कि कुरान दो दफ्तियों में किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं किया, तो आपने क्यों किया? कोई कहे कुरान में भी तो नहीं मौजूद है कि दो दफ्तियों के बीच में ऐ नबी कर डालो या ऐ सहाबा कर डालो, फिर सहाबा ने किया, फिर इसको दलील आपने कैसे बनाया? हमने दलील इस वजह से बनाया कि कुरान में मौजूद है कि यही मोमिनों का रास्ता है। सूरह निसा आयत नंबर 115, ये आयत बतलाती है कि इजमा की भी कोई हैसियत है। अगर कुरान इजमा को मजबूत ना मानता और मोमिनों के रास्ते को मजबूत ना मानता, उसे ठोस ना करार देता, और कुरान ये ना कहता कि मोमिनों के रास्ते को जो छोड़ेगा हम उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, तो हम इजमा को नहीं मानते। लेकिन कुरान चूंकि इजमा को दलील मान रहा है, इस वजह से हमें और आपको भी चाहिए कि हम कुरान और हदीस और उसके साथ इजमा को भी दलील माने। इजमा किसको कहते हैं? जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी हो कि वो किताबों सुन्नत से मसाइल को मुस्तंबत कर सके, वो इज्तिहाद खुद कर सके,
मसले को हल कर सके, उसके अंदर इतनी लियाकत हो। ऐसे शख्स जितने मौजूद हैं उम्मत के किसी दौर में, सब ने किसी मसले में अगर इत्तेफाक कर लिया है तो गोया कि उससे हमें और आपको नहीं हटना है। लेकिन कभी कभार लोग इजमा का दावा करते हैं और इजमा वो होता नहीं है। इजमा कभी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता, बल्कि इजमा किताब और सुन्नत के मुताबिक होगा। एक मिसाल मैं देता हूं, इसको आप लोग सुन लीजिए। कहा जाता है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 रकात तरावी शुरू की गई और इस पर सब सहाबा का इजमा हो गया। एक मसला, एक मजलिस की 3 तलाक को उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 करार दिया और उस खातून को मुतल्लका बाइना तलाक बत्ता उसको करार दिया। इस पर सारे सहाबा का इजमा हो गया। ये 2 मसला आप याद रखिए कि इजमा का दावा कैसे किया गया है। पहला मसला, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 20 रकात तरावी शुरू की गई, सारे सहाबा का इजमा हो गया। हम आपसे पूछते हैं, सहाबा को वहां इजमा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या तरावी की सलात से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया नहीं था? क्या तरावी के सिलसिले में हदीस में कुछ मौजूद नहीं था कि हम उस पर अमल करें, कि उसके खिलाफ इजमा करें? बिल्कुल मौजूद था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाते तरावी, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, जो भी आप नाम दीजिए, यह सब कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे। सलाते तरावी जिसे हम कहते हैं, इसी को तहज्जुद कहते हैं, इसी को सलातुल लैल कहते हैं, इसी को क़याम रमजान कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस बुखारी में, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान व फी गैरिहा अला 11 रकात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में या गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये हदीस है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 11 को 20 बना ले, तो ये तो पूरे उम्मत के लोग गुनहगार होंगे कि रसूल के खिलाफ इजमा बना लिए। इसको इजमा नहीं कहते हैं। जहां किताब और सुन्नत में कोई चीज मौजूद ना हो, वहां जरूरत पड़ती है इज्तिहाद की। यहाँ इज्तिहाद की जरूरत क्या है? वमा अताकुमुर रसूल फखुदूह, जो रसूल दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे उसे रुक जाओ। तो यहाँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 11 रकात सलात दी तरावीह की, तो उसके खिलाफ इजमा की जरूरत क्यों पड़ी सहाबा को? लिहाजा यहाँ जो लोग दावा करते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इजमा हो गया सहाबा का 20 रकात तरावीह पर, और एक रिवायत सही नहीं है। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह की किताब है सलातुत तरावीह, उर्दू में तर्जुमा भी हो गया है। एक एक हदीस को जिससे लोग इस्तेलाल करते हैं, सब पर गुफ्तगू किया, कोई सनद सही नहीं है। क्योंकि ये तो ये होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इजमा कर लिया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात कभी नहीं पढ़ी है, आपने 11 रकात पढ़ी है, तो यहाँ कहना ये इजमा गलत है, इसको इजमा नहीं कहते हैं। इजमा किताब और सुन्नत के खिलाफ नहीं होता, और उम्मत पूरी किताब और सुन्नत के खिलाफ इकट्ठा नहीं हो सकती। लिहाजा जो लोग ये दावा करते हैं कि सहाबा का इजमा हो गया 20 रकात तरावी पर, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को छोड़ करके, ये तो अजीब सी बात है कि सहाबा ही नौजुबिल्लाह सबसे बुरे हो गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपके मनहज को छोड़ करके और 11 रकात को 20 रकात बना दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, इसमें इजमा क्या है? यहाँ तो रकात भी मौजूद है, और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते तरावीह बा जमात भी अदा की है। आपको पता है, 2 रात या 3 रात। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सलाते तरावीह शुरू हुई, उसका असल भी मौजूद है सुन्नत में, और 20 रकात जमात के साथ शुरू हुई, जमात भी मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाफा क्या किया? अरे असल मशरूइयत जो सलाते तरावीह की थी वो भी मौजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और जमात के साथ भी उसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ज्यादा किया? तो जो लोग कहते हैं कि 20 रकात पर इजमा हो गया, गलत है, यहाँ इजमा नहीं हुआ। और देखिए दूसरी मिसाल जो मैंने दी कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में
ایک مجلس میں کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو خلاص طلاق بائن ہے، طلاق بتہ ہے، اس کی بیوی نہیں رہے گی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اب دوسرے شوہر سے جا کر شادی کرے، پھر وہ طلاق دے دے تب پہلے کے پاس جا سکتی ہے۔ لیجئے دروازہ پورا بند ہو گیا۔ کہاں کی بات ہے یہ بھائی؟ اس کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ کا 3 طلاق ایک مانا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تقریباً 2.5 سال شروع میں بھی اسی پر عمل تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خلاف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے خلاف، اور پھر یہ کہنا کہ اس پر اجماع ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتی طور پر ایک سزا نافذ کیا تھا۔ کہا کیا ہو گیا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں طلاق دے کر کے، اور پھر جیسے عدت ختم ہونے والی ہوتی ہے اس کو واپس کر لیتے ہیں۔ نہیں، خبردار اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو سزا کے طور پر اس کو تینوں مانا جائے گا۔ یہ وہ خلیفات ہے، وقتی طور پر ان کو حکم نافذ کرنے کا حق تھا، انہوں نے کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لیکن اگر اختلاف جب برپا ہوگا، فردوہ الی اللہ والرسول، پہلے درس میں بتا چکا ہوں، جب اختلاف برپا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی چیز میں جب جھگڑ پڑو تو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف۔ تو طلاق کے مسئلے کو جب ہم لوٹاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کوئی دے دے تو بیوی طلاق بتا اس کو واقع ہو گیا، طلاق بائن واقع ہو گئی، خلاص اس کو گھر سے بھگا دو۔ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو ہم ایسا نہیں پاتے۔ تو پھر یہ کہنا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق کو 3 مانا جائے گا، اس پر اجماع ہو گیا۔ کس نے اجماع کہہ دیا کہ اجماع ہو گیا؟ کتاب و سنت کے خلاف اجماع ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف اجماع ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ جانیں کہ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کا یا کسی دور کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر اگر وہ اکٹھا ہو جائیں تو اس کو بھی دلیل مانا جائے گا۔ جو مثال میں نے صحیح دی وہ کیا ہے؟ قرآن کو 2 دفتیوں کے بیچ میں اکٹھا کرنے کا مسئلہ تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ لہذا امت کے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صحابہ نے نعوذ باللہ خیانت کی اور انہوں نے 40 پارہ قرآن کو 30 رکھا، 10 کو حذف کر دیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جتنی چیز ایسی سب حذف کر دیا، اور اسی طریقے سے علم نشر لک صدرک سے ووضعنا علی لک صہرک، اور اے نبی علی کو ہم نے تیرے لیے داماد بنایا، اس آیت کو صحابہ نے حذف کر دیا۔ یہ سب خیانت ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، اور قرآن پر گویا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ قرآن سے دلیل، اسی طریقے سے حدیث سے دلیل، اور اسی طریقے سے صحابہ کے اجماع یا بعد کے مجتہدین کے اجماع سے بھی دلیل آپ پکڑ سکتے ہیں۔ چوتھی جو متفق علیہ دلیل ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس آپ جانتے ہیں، ترازو، تولنا، مقیاس، ایک چیز کو دوسرے چیز پر تولنا۔ کہیں قرآن میں کسی چیز کے تعلق سے موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو، اجماع صحابہ میں، اجماع تابعین میں کہیں کوئی چیز موجود نہ ہو، اور ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کا کون سا مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ جدید مسئلہ جو پیش آیا ہے اس کو پہلا جو گزر چکا ہے اسی پر قیاس کر لیا جائے گا۔ قیاس کی دلیل دیکھیے، ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں تو ایک کالا کلوٹا بچہ پیدا ہو گیا۔ کہا کالا کلوٹا بچہ پیدا ہو گیا تو کیا پریشانی ہے؟ یہ بتاؤ کہیں مٹیالے قسم کے اونٹوں میں کوئی کالا اونٹ پیدا ہوتا ہے کبھی کہ نہیں؟
कहा हो जाता है, हम खुद पालते हैं ऊँट, ऐसा देखते हैं कि जिस ऊँट से जुफ्ती कराया गया है वो भी वैसा नहीं, उसकी माँ भी वैसी नहीं, दूसरे रंग का पैदा हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर ये काला कहाँ से पैदा हुआ? जब जिस ऊँट से मुज़क्कर से जुफ्ती कराया गया उसका रंग भी ऐसा नहीं, जिस ऊँटनी से बच्चा पैदा हुआ उसका रंग भी वैसा नहीं, तो ये काला बच्चा कहाँ से ऊँट का पैदा हुआ? कहा कि हो सकता है उसके नस्ल में कोई ऐसा रहा हो, लअल्लहु नज़अहु इरकुन, शायद कोई नस्ल रग उसी ने खींच लिया, बच्चा ऐसा पैदा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बच्चा ये काला जो पैदा हो गया है, लअल्लहु नज़अहु इरकुन, शायद तेरे बाप दादा में कोई काला रहा होगा और वो नस्ल यहाँ करके जाहिर हो गई, तेरे यहाँ बच्चा काला पैदा हो गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जैसे तूने देखा ऊँट का बच्चा काला पैदा हुआ, कयास कर इसी पर तेरा बच्चा भी काला पैदा हुआ। इसको कयास कहते, क्योंकि अब इसकी तो कोई दलील नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दलील है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत से, तबीयत से आपने दलील दी। कुरान मुकद्दस में बहुत सारी जगहों पर मिसाल दे दे करके बताया गया है। मई जून का महीना जब आता है तो हरियाली खत्म हो जाती है, अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह के माहौल में सरजमीन पे ही देखा जाता है। और जब बारिश का मौसम शुरू होता है और बरसात के कतरे जब पड़ते हैं जमीन पे, तो जमीन से पौधे उगना शुरू, लहलहा उठते, जमीन पर बिल्कुल हरी चादर बिछ जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कज़ालिकन नुशूर, ऐसे ही दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे। कैसे? जैसे ये मरी हुई जमीन पानी के कतरात पड़े तो लहलहा उठी है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन चाहेगा तुम इस कब्रिस्तान से निकलोगे जिंदा होकर। तो गोया कि यह लहलहाती मरी हुई जमीन जो लहलहाने लगी, अल्लाह ताला ने कहा कि कयास करो इसी पर, जो अल्लाह ताकत रखता है इस उड़ते हुई धूल वाली जमीन पे लहलहाता पौधा उगाने पर, वही अल्लाह ताकत रखता है कि तुम्हारी सड़ी गड़ी हड्डियों से तुमको जिंदा कर सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया की मिसाल दी है कि इसको इस पर कयास करने को। लेकिन कयास माल फारिक, कयास माल फारिक का मतलब कि वहां वजह ही नहीं है, कोई कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं जिसकी बुनियाद पर आप कयास करें। कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, फिर आप कयास कर रहे हैं। तो इस कयास को कयास मजमूम कहते हैं, और ये कयास इब्लीस की कयास है। कैसे? जरा देखिए, अल्लाह ताला ने कहा फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ऐ फरिश्तों जरा सुनो, जब आदम का पुतला मैं बना दूं और मैं इसमें रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सजदे में गिर पड़ना। किसका हुक्म है? अल्लाह ताला का हुक्म। सारे फरिश्ते सजदा कर लिए, उन्हीं के बीच में इब्लीस था, सजदा नहीं किया। हुक्म किसका था? अल्लाह ताला का था। किस लिए? सजदा करने का। उसने सजदा नहीं किया और क्या कहा? तूने उसे पैदा किया है मिट्टी से, वह खलकतनी मिन नार, और मुझे पैदा किया है आग से। अरे अल्लाह, ये आग मिट्टी से बेहतर है। अरे यहाँ बेहतर और गैर बेहतर का मसला कहाँ गया? अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो करो, लेकिन उसने कयास किया। हुक्म हो रहा है सजदा करो, सजदा नहीं किया। वहां खिलाफ हुक्म कयास कर रहा है। क्या? आदम मिट्टी के हैं, मैं तो आग का हूं, मिट्टी से आग बेहतर है। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कहा बहुत बेहतर कयास किया। अल्लाह ताला ने कहा जा, ये हमारी नाफरमानी किया, क्योंकि हमारा हुक्म था, सरीह था, तू समझ सकता था, बात समझता था, फरिश्ते समझे, सजदा किए, तूने मुखालफत की, कयास किया नस्से सरीह के सामने। तो जहां किताब और सुन्नत मौजूद हो वहां कयास नहीं इस्तेमाल करना है। कयास जो अपनाएगा उसने गोया कि वो काम किया जो इब्लीस ने किया है। तो दुनिया में सबसे पहले कयास जिसने किया वो इब्लीस ने किया, खिलाफे किताब और सुन्नत कयास किया और गलती किया कयास में। क्या गलती किया जानते हैं? आग और मिट्टी का मुकाबला किया, कहा मिट्टी से आग बेहतर है। कोई अक्लमंद दुनिया में नहीं कहता है कि आग मिट्टी से बेहतर है। ये शैतान की अक्ल है, बताइए। अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कयास किया और गलती किया। अल्लाह ताला का हुक्म था सजदा करो, सजदा करता, लेकिन नहीं सजदा किया। कहा नहीं, मैं आग का हूं, बेहतर हूं। कैसे आग बेहतर है मिट्टी से? मिट्टी में एक दाना गिर जाए, मिट्टी हिफाजत करती है, पालती है, कोम पल 4 दिन के बाद निकला, यहाँ एक दाना गिरा हुआ था,
कभी खवातीन हैंड पाइप वगैरह के पास यही इलाकों में गेहूं वगैरह धुलती हैं, धान वगैरह धुलती हैं, पता चला वहां गिर गया, चंद दाने अगर गिरे थे तो 4 दिन के बाद पता चला कौन निकल गया, देखो यहाँ एक दाना गिरा हुआ था। मिट्टी के अंदर कोई चीज गिर जाए तो मिट्टी उसकी हिफाजत करती है, उसको उगाती है, और आग में इबलीस गिर जाए, इबलीस जैसे लोग गिर जाए तो खतरनाक बन जाए। आग के अंदर जो चीज भी गिरे वो राख बन जाएगी। तो जमीन की सिफत है उपजाऊ होना, और आग की सिफत है नष्ट करना, बर्बाद करना। तो जिसकी सिफत पालना हो वो बेहतर है कि जिसकी सिफत है बर्बाद करना वो बेहतर है। तो शैतान इबलीस ने सबसे पहले कयास किया कुरान के सामने, हुक्म के सामने, और सबसे पहले गलती उसने किया। तो ये 4 दलीलें मुत्तफक अलैह हुई, जिसको हम और आप जाने कि कुरान से चीजों को लेना है, हदीस रसूल से लेना है, और इजमा से लेना है। जब भी इजमा हुआ हो, सहाबा का हो, ताबईन का हो, उम्मत के मुज्तहिदीन का कभी भी इजमा किसी मसले में रहा हो तो उसको लिया जाएगा। और चौथी चीज है कयास, लेकिन याद रहे कि कयास मकाम पे लिया जाएगा, किताब और सुन्नत जहां मौजूद हो वहां कयास की जरूरत नहीं है। एक मिसाल मैं देता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर की कोई मिकदार आपने मुतय्यन नहीं की, जिस पर मियाँ बीबी राजी हो जाए, वली राजी हो जाए, उसी पर शादी हो सकती है। यहां तक कि आपने कहा इल्तमिस वलो खातम मिन हदीदिन, तलाश कर चाहे तेरे घर में एक लोहे की अंगूठी है उसी से शादी कर दूंगा। मतलब यह है कि जिस पर मियाँ बीबी राजी हो जाए उसमें शादी हो जाएगी। मुतय्यन कर दिया गया एक फकही मसले में, कितना? रुबुए दीनार। रुबुए दीनार जरूरी है। रुबुए दीनार यानी सोने, एक दीनार, एक सिक्के का 1/4 हिस्सा जरूरी है। अब पूछा गया भाई कहां से आप लोगों ने जरूरी समझा? कहा इसको कयास किया गया है। किस पर कयास किया गया है? कहा रुबुए दीनार अगर कोई चोरी कर ले तो एक हाथ का काटना जायज हो जाता है। इसी तरह से रुबुए दीनार में औरत की शर्मगाह भी एक अज़ु है, वो जायज हो जाएगा। अरे इसकी जरूरत क्या थी? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं किया, यहां तक कि एक चंद सूरतों का हाफिज़ कुरान आया, उसको शादी करना था, घर में कुछ नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वज़तुकहा बिमा का मिनल कुरान, हमने इस खातून की तेरी शादी कर दी है, उसके बदले जो कुरान की सूरतें तुझे याद है तू इसको भी याद करा दे। हो गया महर। वो शुएब नामी शख्स जिनका तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में है, क्या कहा? इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा हातैन, मैं चाहता हूं ऐ नौजवान कि अपनी दोनों बेटियों में से एक की शादी तुझसे कर दूं। अला अंत अजुरनी समानिया हिजत, इस पर कि तू हमारे यहाँ 8 साल बकरी चराएगा। लो ये भी महर बन गया, उजरत, मेहनत, ये भी महर है। तो रुबे दिनार क्यों मुतय्यन किया आपने? कहते हैं कयास। क्या कयास? वही कि 1/4 दिनार का हिस्सा कोई अगर चुराता है तो उसका एक हाथ काटना जायज हो गया, हलाल हो गया। तो ऐसे 1/4 जब देंगे तो खातून का एक खास अज़ु आपके लिए हलाल होगा। ये कयास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखाई दे रहा था? ये कयास सहाबा किराम को नहीं दिखाई दे रहा था? तो यह है वो कयास जिसको हम लोग नहीं मानते मेरे प्यारो, जहां किताब और सुन्नत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोल दिया है। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, लाख 10 लाख आप मुतय्यन कीजिए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतय्यन कर दिया अपने दौर में, कम महर करो। एक खातून आई बुढ़िया, कहा कि ए उमर, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि चाहे एक किंतार के बराबर देना चाहो तो दे दो, आप क्यों मुतय्यन कर रहे हैं? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कहा कि एक मर्द गलती कर गया, एक बुढ़िया खातून ने सही कहा कि जब अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, कहा दे दो किंतार, पहाड़ के बराबर, कोई मसला नहीं है। जिसके पास ज्यादा है ज्यादा महर दे सकता है, जिसके पास नहीं है, कम है, वो कम देगा। जब शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया है तो रुबुए दिनार आपने मुतय्यन किया, क्या कहते हैं? कयास है। यहाँ कयास की क्या जरूरत है? तो इस कयास को हम नहीं मानते। तो ये 4 दलील आप जाने शरीयत ने जिनको तस्वुर किया है, और इसलिए हम इसको मानते हैं कि कुरान हदीस में इसका तस्करा मौजूद, इसलिए हम इसको मानते हैं। और ये गोया की खुद किताब और सुन्नत है। जब हम ये कहें कि हम किताब और सुन्नत को मानते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं या जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं वो इजमा और कयास को नहीं मानते। लोगों को चाहिए कि अपने जहन से निकाल दें
हम इजमा वो मानते हैं जो इजमा हकीकत में इजमा हो और किताब और सुन्नत के खिलाफ ना हो। हम कयास वहां मानते हैं जहां किताब और सुन्नत में कोई चीज मौजूद ना हो। वो इबलीस वाला कयास हम नहीं मानते कि जहां किताब और सुन्नत का सरी हुक्म मौजूद है वहां हम अपनी अकल से काम लें। ये किसने कहा? तो ये चंद बातें आज के इस दर्स में थी कि हम और आप जाने कि शरीयत की दलीलें हमें 4 जगहों से हमें और आपको मिलेंगी, कुरान से, हदीस रसूल से और इजमा से और कयास से, और सबका सबूत किताब सुन्नत में मौजूद है। जैसा कि मैंने इशारा किया, आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब सुन्नत दिक्कत के साथ पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। इस ताल्लुक से एक हदीस में पढ़ देता हूं, उसको सुन लीजिए और आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। जरा देखिए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ पढ़ लिया, फलहु बिही हसना, उसके लिए उसके बदले एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी उसी जैसे 10 नेकी तक होती है। ला अक़ूलु अलिफ लाम हरफुन, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम में अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। 10 तिहाई 30 नेकियां हो गई अगर हमने और आपने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया। तो कुरान से अपने आप को जोड़े, दिन रात कुरान हमारे साथ रहता है, जुबानी भी पढ़े, देख करके भी पढ़े, हम अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएं। ये वो जखीरा हमारे लिए और आपके लिए है, ये वो नुस्खा कीमिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो इसके रोशनी में कहेगा कामयाब होगा, जो इसकी रोशनी में अमल करेगा उसका अमल कबूल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने आप को किताब और सुन्नत से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।